Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. After a long time, I was busy in the other activity, so I was unable to post the video. So welcome back to my channel and welcome to the class 11th of accountancy group. We were doing the chapter 1 introduction to accounting. In this video, I will explain you the uses of accounting information. Now the information, as I have earlier told that in accounting all the information related to the business are recorded. So why these informations are recorded? Who uses this information? What are the uses of this information? Who uses this information? ये जो information business की जो record हुई है accounts में उसको कौन use करता है? Why these informations are recorded? क्यों record किया जाता है? That I have already explained. But who uses this information? इसको कौन use करता है? So let us start. Today's topic is who are the users of accounting information? कौन use करता है ये information को? So the users of accounting information can be classified as internal users and external users. So there are two types of users. We can classify it as internal users, means those who are related to the business, those who are within the business, जो business से related हैं, business के अंदर हैं. And the external users means जो बिजनेस से बाहर के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, बिजनेस से जो रिलेटेड नहीं है, बाहर के लोग हैं, that are the external users. So in the internal users are the owners, management and employees. Owners means जो बिजनेस के ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है, मैनेजमेंट जो बिजनेस की पूरी मैनेजमेंट टीम है, एंड द एम्प्लॉयज मीन्स वर्कर्स. And in the external users, creditors, bank, investors, society and government. So I will explain you one by one why these users use accounting information. इनको क्यों use करना पड़ता है information related to the business. Let's start. First is the owner. So the owner means the owner of the business. जो business का मालिक होता है, that is the owner. So owner provides the capital or the fund to the business organization. जो owner है, जैसे हमारा बिजनेस है तो हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे, ओके. एंड द ओनर हैज द क्यूरियोसिटी टू नो वेदर द बिजनेस इज प्रॉपरली कंडक्टेड और नॉट. जो बिजनेस का जो ओनर है, जब उसने पैसा लगाया है तो उसको क्यूरियोसिटी अंदर से जानने की इच्छा होगी कि जो उसने पैसा लगाया है वो सही से यूज हो रहा है कि नहीं, उसकी बिजनेस जो है सही से चल रही है या नहीं चल रही है. So he want to know that, owner of the business want to know that whether the capital employed in the business is properly used or not. जो पैसा लगाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और आपने बिजनेस में 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख वॉटएवर आपने ये अमाउंट बिजनेस में लगाया है, तो सबसे पहले आपका क्या एम होगा, आपको ये जानना होगा कि जो पैसा बिजनेस में लगा है वो प्रॉपर यूज हुआ है कि नहीं. सो द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज प्रॉपरली यूज, जो हमारे पैसा प्रॉपर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है. एंड दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. जो ओनर है, जो बिजनेस का ओनर है, जिसने पैसा लगाया, वो किस में इंटरेस्ट लेगा, बिजनेस की प्रॉफिट में, कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, ओके. सो दीज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस, ही विल गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. उसको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, he will get this information from the accounting records or from the financial statement which is prepared at the end of the financial year. ये मैंने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, ओके. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर वॉच करें. सो द ओनर विल गेट द इंफॉर्मेशन about the profitability or about the whether the capital is properly employed in the business or not. So he will get all these information from the accounting record. He will get all these information from the financial statement which is prepared at the end of the financial year. इसीलिए इसको accounting information की जरूरत होती है. समझ में आया? Now come to the next point, that is the management. Now the managers or the management team of the business, जो मैनेजमेंट टीम है वो मैनेजमेंट टीम क्या करती है, दे हैव टू टेक द वेरियस डिसीजन रिलेटिंग टू द बिजनेस. बहुत सारे बिजनेस के ऐसे डिसीजन होते हैं जो उनको लेना पड़ता है, फ्यूचर के लिए लेना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिंग द बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस की पॉलिसीज बनाने के लिए, या फ्यूचर में बिजनेस के डिसीजन लेना है कि बिजनेस में किस मटेरियल में पैसा लगाना है ना, किस गुड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कम खर्चा करना है. सो दीज ऑल द डिसीजन, प्रोडक्ट को कितने रेट में बेचना है, उसको
कॉस्ट ऑफ प्राइस उसका हाई करना है कि लो करना है. सो ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट टीम. ये मैनेजमेंट टीम डिसीजंस लेती है जो बिजनेस के फ्यूचर के डिसीजन है. दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट. सो द मैनेजमेंट can take the proper decision only by knowing the information relating to the business. जब उनको बिजनेस की जानकारी होगी, बिजनेस की इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, तभी तो वो डिसीजन सही ले पाएंगे. सो टू नो द इंफॉर्मेशन दे हाउ दे विल गेट द इंफॉर्मेशन. उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? Yes, correct. They will get the information from the accounting record which is maintained by the businessman. जो बिजनेसमैन ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसी रिकॉर्ड से मैनेजमेंट टीम को उन बिजनेस का इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है और कहाँ पे पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ पे कम खर्चा करना है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन दे विल गेट फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिकॉज द मैनेजमेंट टीम हैज टू टेक द वेरियस डिसीजन रिलेटिंग टू द बिजनेस फॉर द फ्यूचर. ओके, now come to the next point, that is the employees. Employees means workers. अब वर्कर को क्या जरूरत पड़ गई है, उनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए है, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? So the employees have an interest in the earning capacity of the business. They want the information of the business so that they can demand for the higher wages. They can demand for the bonus. अगर उनको जब जानकारी होगी कि बिजनेस प्रॉफिट में है तो वो क्या कर सकते हैं, अपना डिमांड सैलरी के लिए ज्यादा सैलरी मांग सकते हैं, ज्यादा बोनस मांग सकते हैं एंड बेटर वर्किंग कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऑफिस में हैं, हमें मालूम है कि हमारा ऑफिस में जो अच्छा प्रॉफिट है, तो हम अपने मैनेजर से डिमांड कर सकते हैं ना कि हमारे ऑफिस में वाटर कूलर लगा दो, है ना, एम्प्लॉयज जो है. या फिर हम डिमांड कर सकते हैं कि हमारे ऑफिस में एक कूलर, गर्मी के समय में कूलर लगा दो या एसी होना चाहिए यहाँ पर. तो ये सब एम्प्लॉयज कब डिमांड कर सकता है? व्हेन ही नोज दैट द बिजनेस इज गोइंग इन द प्रॉफिट और द कंडीशन ऑफ द बिजनेस इज गुड, तभी वो डिमांड कर सकता है. एंड ही विल गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. उसको ये सारी जानकारी उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलेगी. एंड क्योंकि जो उसने डिमांड किया है वो तो प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा, जब प्रॉफिट होगा तभी तो वो डिमांड कर सकता है. ठीक है. सो फॉर दिस रीजन, ये सब रीजन के कारण दिस ग्रुप इज इंटरेस्टेड इन द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस. इसीलिए ये जो बिजनेस के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं कि बिजनेस में क्या चल रहा है. समझ में आया? नाउ कम टू द एक्सटर्नल यूजर्स. वन मोर टाइम आई विल एक्सप्लेन यू द इंटरनल यूजर्स इन शॉर्ट. ओनर्स जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए कि जो उन्होंने पैसा लगाया है वो प्रॉपरली सही जगह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए उनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए है. मैनेजमेंट हैज टू टेक द वेरियस डिसीजन रिलेटिंग टू द बिजनेस. फ्यूचर के डिसीजन उन्हें लेना है, दैट्स व्हाई दे नीड द बिजनेस इंफॉर्मेशन. एंड द एम्प्लॉयज, दे कैन डिमांड फॉर द हायर सैलरी एंड फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन. दे वांट टू नो द information relating to the business and they will get the information from the accounting registers that the business has maintained. Clear? Now the next point is external users. External users मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं. अब बिजनेस के जो बाहर के लोग हैं उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेना है. ओके, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि उन्हें क्यों बिजनेस का इंफॉर्मेशन चाहिए. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट पॉइंट इज creditors. Creditors are those person who provide the fund to the organization or goods and services on credit. Creditors means जो goods और सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बिजनेस है तो हम किसी चीज का, जो भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो तो हम गुड्स बाहर से लेकर आ रहे हैं. जब हम बाहर से लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ क्रेडिट में भी ला रहे होंगे. जब हम क्रेडिट में ला रहे हैं तो कोई हमें, जो पर्सन है बाहर से, वो हमें उधार में प्रोवाइड कर रहा होगा गुड्स. सो Yes, correct. Creditors are the person, ये वो लोग होते हैं those who provide the goods or the service on credit, जो हमें goods provide कर रहे हैं उधार में. Okay, so creditors needs the accounting information. उन्हें क्यों चाहिए accounting information? They need the information to find out the ability of the borrower to repay the loan. They want to know the ability of the business. उनको इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि वो बिजनेसमैन की जो एबिलिटी देखना चाहते हैं कि जो उन्होंने उधार में दिया है, क्या वो उनको वापस पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो द क्रेडिटर्स वांट टू नो द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस. वो बिजनेस की पोजीशन जानना चाहते हैं. एंड द एविडेंस ऑफ इनकम. अगर आप मुंह से बोलेंगे तो वो नहीं मानेंगे. अगर आप इनकम उन्हें दिखाएंगे
तब उनको यकीन होगा ना कि बिजनेस की इनकम इतनी है, तो वो आपको गुड्स प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज कोई बड़ा सामान उधार में लेने जाते हैं, या फिर आपने गुड्स उधार में लिया है, या आप समझ लीजिए आपने एसी लिया है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, आपने एसी लिया है 50,000 का उधार में लिया है क्रेडिट में, तो वो आपको ऐसे क्रेडिट में उधार में कोई भी आपको गुड्स दे देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कब तक नहीं देगा वो? He want to, before giving on the credit, he want to know that you have the ability to repay that amount or not। आपके पास वो एबिलिटी है कि आप उस अमाउंट को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। He want to know the evidence of income। वो इनकम का प्रूफ देखना चाहेगा कि आप अपनी इनकम दिखाइए, या फिर जो भी आपके घर में इनकम है वो इनकम दिखाइए, तो उनको प्रूफ चाहिए। So in the same way, creditors are the person who provide the goods on the credit। So before providing the goods, they want to know the ability of the businessman, whether the businessman can repay the loan, repay the amount or not, and he also want the evidence of the income। So that's why the creditors are interested। So that's why the creditors are interested in the information of the business। इसीलिए वो interested होते हैं information, business की जानकारी इसीलिए वो चाहते हैं। समझ में आया? Next is bank। So bank provides the loan to the business। बैंक से हम लोन लेते हैं, सुना है ना आपने, लोन लेना है, बैंक से लोन लिया है। So बैंक provide the long term loan and the short term loan। long term loans मतलब हमने लोन लिया है 10 साल के लिए ले लिया, 15 साल के लिए ले लिया, ये लॉन्ग टर्म लोन होता है। और शॉर्ट टर्म लोन हमने 1 साल के लिए लिया है, 6 महीने के लिए लिया है। सो द बैंक प्रोवाइड द लोन, लॉन्ग टर्म लोन और द शॉर्ट टर्म लोन टू द बिजनेस। सो द बैंक also want to know the financial position and the soundness of the business to know whether the firm will be able to pay their loan or not, whether their loan are secured or not। बैंक जानना चाहता है कि जो उन्होंने लोन प्रोवाइड किया है वो बिजनेस वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उन्होंने जो लोन प्रोवाइड किया है वो सिक्योर है कि नहीं है। ओके, एंड दे ऑल्सो आर इंटरेस्टेड इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। वो इसमें भी इंटरेस्ट लेती है बैंक, इनकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितना हर महीने में अर्न कर रहे हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द business। So before providing the loan, they want to know the financial position of the business। That's why the bank or the financial institution are interested in the information of the business। वो भी इंटरेस्ट रखते हैं। समझ में आया? Now next point is investors। And who are the investors? ये कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स आर द कैपिटल प्रोवाइडर्स ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। सो द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर फॉर मेकिंग श्योर दैट इन्वेस्टमेंट्स आर सिक्योर्ड एंड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मीन्स दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, दे वांट टू नो दैट द अमाउंट इज सिक्योर्ड और नॉट। उन्होंने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो सिक्योर है या नहीं है। ठीक है। सो इन्वेस्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस दे वांट टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, दे वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाने के पहले बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हैं कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, और उनको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? बाय द अकाउंटिंग रजिस्टर दैट हैज बीन मेंटेन बाय द बिजनेसमैन। जो रजिस्टर हमने जो बनाया है उसी से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बिजनेस में हमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, ये उसको देखकर डिसाइड करेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज सोसाइटी। ओके, सोसाइटी इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इन विच द एंटरप्राइज ग्रो। सोसाइटी ही जगह है जहां से हमारी बिजनेस ग्रो करती है। सोसाइटी के बिना हमारी बिजनेस ग्रो कर सकती है कि नहीं? सोसाइटी से ही हमारी बिजनेस ग्रो करती है। So business help the society in generating employment and low cost education to the weaker section of the society। जो बिजनेस है हमारे, अगर हमारी सोसाइटी में या हमारे एरिया में या हमारे जहां हम रहते हैं, अगर उस एरिया में बिजनेस है तो उससे हमें क्या फायदा होगा? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे वो। ठीक है, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड लो कॉस्ट एजुकेशन, जो कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनको, जो वीकर सेक्शन होते हैं जो सोसाइटी से डील करते हैं एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
And in this connection, accounting information help the society to know the contribution made by the business for the upliftment of the society. इस कनेक्शन में क्या है, जो सोसाइटी होती है, दे विल गेट द इंफॉर्मेशन दैट हाउ द बिजनेस, what the business has contributed for the upliftment of the society. जो बिजनेस ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, सोसाइटी के लिए क्या किया है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है, what the business has done for the upliftment of the society. So they will get all this knowledge, all this information by the accounting register of the business. Okay. Again listen, society is a part of the business where the enterprise grow. ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बिजनेस ग्रो करता है, एंड बिजनेस प्रोवाइड द सोसाइटी एंड एम्प्लॉयमेंट और द लो कॉस्ट एजुकेशन to the weaker section of the society. So and the society want to know that what the business has done for the upliftment of the society, what the business has contributed, what contribution has made by the business for the upliftment of the society. So for all these information they want to know the accounting for all these. So to know all these things, they want to know the information of the business. इन सबको जानने के लिए they want the information of the business. उनको बिजनेस की जानकारी चाहिए है कि बिजनेस में क्या चल रहा है. Now the next is government. अब गवर्नमेंट को क्यों चाहिए है बिजनेस की इंफॉर्मेशन? So why the government need this information? So government impose taxes on the businessman. Businessman के ऊपर टैक्स इम्पोज करती है. So before imposing the tax, कितना टैक्स लेना है, they want to know the accounting record of the business. They want to know the income of the business. So on that basis, the government will impose the tax on the businessman. And beside these, the government also provide the subsidies. Government जो है subsidies भी provide करती है, and government and determine the national income also. So for determination of the national income and for providing the subsidies, government also need the accounting information of the business. Government need the information of the business because the government make various policies relating to the business, and government has to impose the tax. Government tax भी impose करती है. Government provide the subsidies. Government has to declare the national income. So for all these, government has to know about the information of the business, and they will get the information of the business from the accounting register which the businessman has maintained. Here we complete this topic, uses of accounting information. Accounting information की जरूरत कौन लोगों को होती है. Okay, so I hope that you have understood this topic, and if you understood this, so please don't forget to like my channel, and we will meet in the next video with a new topic. So till then, take care. Goodbye.